Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, already अपने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था, द असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग. तो इन द फर्स्ट लेक्चर्स हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि इंट्रोडक्शंस एंड द कोड रजिस्टर्स. सो on the chip on the ROM to save your program. So program is the burn into the ROM, then fixed and not supported to charge, and the RAM is supported for the data can be changed. Then data is lost when the 8051 powers down. So the register to store the informations temporarily. So some register are used for the internal operations and the some register are located in the RAM, so have their special locations. So these are we are already studying the last chapters. Then bit data can be proceed, then address pointer to be data to be fetched. Then vast majority of the 8051 register are 8-bit registers. So these are the 8-bit registers. So D0 is the least significant bit and the D7 is the most significant bit. Then the most widely used is accumulators and the arithmetic and logic unit, and B to R0 to R7 are the general purpose registers, and another DPTRs and the pointer counter will be used for the programming. So these are the basic assembly language write or structures, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द लेबल होगा, यानी कि अगर हमको लूप प्रोग्रामिंग यूज़ करनी है तब. देन this one is the instructions, numerics and operands, and this one is the command. The structure flow, how to store the assembly language, then T mode, CTD, then code registers जो था वो PCON, then priority register वो देखा था. Now the today's topic is start of the programming, किस तरह से प्रोग्रामिंग होगा. So first one is the address mode एंड डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस. सो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने ऑलरेडी देख चुके हैं माइक्रो प्रोसेसर में. ओके, नाउ स्टार्ट विद द एड्रेसिंग मोड. सो द एड्रेसिंग मोड, द डेटा इज स्टोर्ड इन द वन लोकेशंस इन द मेमोरी कॉल्ड द सोर्स एड्रेस एंड द मूव टू द डेस्टिनेशन एड्रेस. यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन होता है कि जहाँ पे डेटा ऑलरेडी स्टोर होते हैं और दूसरा जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं. इच वन उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस. सो व्हेन एवर वी से द मूव द सिंस द डेटा इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम द सोर्स, देन द वेरियस वे ऑफ असेंसिंग द डेटा आर कॉल्ड द एड्रेसिंग मोड, एंड द एड्रेसिंग मोड्स आर डिटेक्टेड when the processing is designed. So the instructions of the 8051 may be classified based on the source or the destination style. So the first one is the immediate addressing, then register addressing, direct addressing, then register indirect addressing, and index register. So now with the first one is the immediate data addressing. So in this mode, the data is made part of the opcode and the source operand is constant and the operand immediately after the opcode. opcode यानी कि जो डेटा है वो. So the data must be prefixed with the hash. अब now इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इमीडिएट डेटा में, कि यहाँ पे मूव ए हैज़ डेटा, यानी कि जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट रखेंगे. सो हैज़ इज़ अ सिग्निफिकेंट, दैट इज़ द वैल्यू. अब यहाँ पे हैज़ लिखने के बाद हम जो वैल्यूज़ लिखेंगे उस वो डायरेक्ट डेटा होगा. यानी कि हमको 5050 हमको एक्यूमुलेटर में ले जाना है तो डायरेक्ट हम 50 लिखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप होगी. उसको बोलते हैं एड्रेस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. सो मूव, देन डेस्टिनेशंस जहाँ पे ले जाना है वो, एंड सोर्स यानी कि जो डेटा है वो.
तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग का वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज द मूव आर एन, यानी कि जो रजिस्टर है वो, देन हैज़ एन, एन मीन्स के जो वैल्यू है वो. सो द कॉपी द, जो ए इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा कि जो 8 बिट है, दिस वन इज द 8 बिट नंबर टू रजिस्टर इन दी आर एन. देन आफ्टर एक्यूमुलेटर में हम उसी तरह से, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो डेटा है, जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा. यहाँ पे एन है तो एन डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा. देन आफ्टर द DPTR, सो DPTR एन एन कॉपी द 16 बिट. अब DPTR वो 16 बिट रजिस्टर है, तो 16 बिट नंबर एन एन टू द स्टोर इन द DPTR रजिस्टर्स. So Rn can be any register of R0 to R7 selected of the bank. Now अब एक एग्जांपल देखते हैं कि move the accumulator to 20 has 20, यानी कि जो 20 वैल्यू है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में आ जाएगी. Then move R2 has 42, यानी कि जो डेसिमल नंबर 42 है वो डायरेक्ट R2 में आ जाएगा. देन मूव R0 टू 24, यानी कि जो वैल्यू डेसिमल वैल्यू जो 24 है वो R0 में आ जाएगा. एंड द मूव DPTR हैज़ 400, यानी कि DPTR की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 4000. सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस. टू द मूव इंस्ट्रक्शंस ए हैज़ 16, यहाँ पे हमने लिया है कि एक्यूमुलेटर ए और हैज़ 20. सो ऑपकोड इज अ 20. So the instructions of the 2 bits executed one cycle, so the no flag are affected. So after the executions, the left hand sides of the flag and the next locations, अब उसमें क्या होगा, जो लोकेशंस होगा वो नेक्स्ट हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. नाउ द रजिस्टर एड्रेस मोड. अब रजिस्टर एड्रेस मोड में क्या होता है कि आगे हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड देखा है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट रखते हैं. बट सो इमीडिएट एड्रेसिंग में देखा. अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि हम जो भी वैल्यूज़ है तो वो रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा रजिस्टर में स्टोर होगा, वहाँ से लेके हम एक्यूमुलेटर या जो भी रजिस्टर में रखना है वो रखेंगे. So the register addressing mode involves the use of the register to hold the data to be manipulated. So both the source and the destinations are registers and their size should match. So the example you can see here. So move 8 R0 means the copy of content R0. R0 में जो content है वो accumulator में जाएगा. In similar way R2 में accumulator में जो values है वो R2 में जाएगी. देन ऐड दी AR5, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐड इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे कि जो R5 में जो वैल्यूज़ है वो और एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो दोनों को एडिशंस करके एक्यूमुलेटर में रखेगा. देन अगेन द मूव द R5A, यानी कि सेव द एक्यूमुलेटर डेटा टू द R5. देन मूव R7 टू DPTL, यानी कि कॉपी द कंटेंट ऑफ DPL, जो DPL में जो वैल्यू होगी वो R7 में ट्रांसफ़र होगी. सो इट शुड बी नोटेड दैट द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन रजिस्टर मस्ट बी मैच इन दी साइज, यानी कि अगर 8 बिट रजिस्टर है तो जो रजिस्टर है वो उसमें भी 8 बिट होना चाहिए. अगर 16 बिट है तो हम 16 बिट ही यूज़ कर सकते हैं, हम 8 बिट यूज़ नहीं कर सकते. So if the DPTR-A so is the individuals, so DPTR is the 16 bit and A is the 8 bit. So we can move the data between the accumulators and Rn. Rn में हम 0 to 7 में कोई भी दे सकते हैं, but the move of the data between the Rn register is not allowed. Now the direct addressing mode. नाउ द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यानी कि हम
डायरेक्ट जहाँ पे एड्रेस है, जो एड्रेस है उसका हम जो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं वो 00000 टू लेके, अगर 16 बिट है तो 0002 टू FFF के बीच में जो भी वैल्यूज़ है वहाँ जो एड्रेसिंग मोड है उसमें से जो कोई भी डेटा है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर 8 बिट है तो 002 FF। So in the addressing mode of the data can be directly accessed from the RAM using their address, and the address as the 128 bit of the RAM in the 8051. So the RAM has been assigned address of 0027F. So the RAM location 0021F are assigned to from the bands of 8 working register R0 to R7. Then RAM locations 20 to 2F are set aside the bit address space to save the single bit data. Then 30 to 7F are the available as a place to save the bit size data. Now the example is the move R120 has H. सो यहाँ पे क्या होगा कि जो रैम लोकेशंस 20 में जो वैल्यूज़ है वो R1 में जाएगी। देन अगेन अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में जो वैल्यूज़ है वो हमारे रजिस्टर रैम में 42 एड्रेस में जो लोकेशन जो दिया हुआ है 42 वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। देन मूव 7 to 2 यानी कि कॉपी द कंटेंट ऑफ R2। अगर मैं 7 और 2 लिखता हूँ यानी कि रजिस्टर वैल्यू R2 की वैल्यू किस में जाएगी R7 में। सो दीज आर दी कॉपी ऑफ कंटेंट ऑफ R2 टू R7। सो सेम एज द मूव R7 टू R2, बट दिस इंस्ट्रक्शन इज इनवैलिड, सो दिस इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंट थ्रू द एड्रेस। नाउ द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, द रजिस्टर्स indirect addressing mode uses the register to hold the actual addressing which contains the required the data. So in other words we can say that the content of the registers is pointer to the data address. So if the data is the inside of the CPU, then only the register R0 and R1 and R use the pointer, and another register R2 R7 cannot be used. So when the R0 and R1 uses as a pointer, they must be prefixed with the @ indications और symbols. So इसका मीनिंग ये है, यहाँ पे हम R0 एंड R1 में ही जो वैल्यूज़ है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे @ यूज़ करते हैं, यानी कि प्रीफिक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ए सिंबल यूज़ करते हैं। सो मूव ए @R0, सो द मूव द कंटेंट ऑफ रैम location whose address in the R0 to E. So first one is move @R0 to has n, यानी कि copy the immediate bit of A2 address in R0. Then @A copy the A2 RAM location R0 pointer. Then move A has RP, it means the copy the content of the address in the RP to A. So here the address in the RP to A. So example, अगर move 60 and has 45 है तो इस वन इज ट्रांसफ़र द एड्रेस यहाँ पे दिया गया है 60, ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे 60 इज़ द एड्रेस एंड द 45 इज़ द डेटा। जैसे हमने आगे देखा था कि हैज़ डेटा लिखा है, यानी कि जो 45 वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट 16 एड्रेस में सेव होगी। इन सिमिलर वे द 61 हैज़, यानी कि 16 जो है वो वैल्यू रजिस्टर में R1 में स्टोर होगी। इन द मूव ए @R1, यानी कि R1 में जो एड्रेस वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगी। सो दीज आर दी
So here you can see that the copy the content of the address in the R1 to A. So this one is called the indirect addressing mode. Now we can see the one example, the transfer the block of the data इंटरनल मेमोरी लोकेशंस टू द एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशन, यानी कि इंटरनल में जो डेटा है उसको मुझे एक्सटर्नल में ट्रांसफ़र करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ORG 00 यानी कि हम एक्यूमुलेटर की वैल्यूज़ हमारी 00 कंसिडर करेंगे. देन सिलेक्ट द इंटरनल रैम, तो हमें यहाँ पे R0 रैम लिया है, लोड द रैम पॉइंटर. देन द लोड द काउंटर R7. नाउ मूव द DPTR हम एक्सटर्नल के लिए यूज़ करते हैं, तो रोम पॉइंटर्स. नाउ अगेन यहाँ पे हमने इंडिकेशंस दिया हुआ है. नाउ मूव A@R0, यानी कि R0 में जो वैल्यूज़ है जो 14 है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, सेव इन द एक्यूमुलेटर्स. अब एक्यूमुलेटर थ्रू ही हम बार भेज सकते हैं. देन मूव एक्स, हम जानते हैं कि मूव एक्स मीनिंग है कि वो जो वैल्यूज़ है एक्सटर्नल के लिए हम यूज़ करते हैं. तो एक्सटर्नल कहाँ पे है, कौन सी है कि भाई DPTR, तो DPTR में एक्यूमुलेटर वैल्यूज़ सेव होगी, कॉपी हो जाएगी. देन इंक्रीमेंट R0 टू एक्सटर्नल एड्रेस. देन इंक्रीमेंट DPTR. अब जैसे जैसे हम रजिस्टर R0 की वैल्यू बढ़ाएंगे ऐसे वैसे हमको DPTR की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी. देन DZN इंक्रीमेंट द DPTR लूप अंटिल द नील, यानी कि 42 0 तक जब तक नहीं जाएगी तब तक वो जंप करेगा अगेन, यानी कि ये जो रोटेशंस है अगेन R2, यानी कि यहाँ से देन आफ्टर द कंटिन्यूसली यहाँ तक कब तक जाएगा लूप में, अंटिल द नल 0 नहीं हो जाएगा तब तक, और देन आफ्टर द एंड. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द वन. नाउ द अनदर एग्जांपल, डेटा ट्रांसफर इन्वॉल्विंग द रैम लोकेशंस एंड द 8051 रजिस्टर्स आर द इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, द डेटा ट्रांसफर इन्वॉल्विंग रैम लोकेशंस and the 8051 register are made using the move और move x instruction. जैसे move इंटरनल के लिए है और एक्सटर्नल के लिए move x है. now move c, यहाँ पे हम move c, अब यहाँ पे हम move c इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब move c इसलिए लिख रहे हैं कि हम जो वैल्यूज़ है वो एडिंग करना चाहते हैं. So the move C A plus DPTR. So the copy the bit in the ROM address from by adding the A and DPTR to the address A. In similar way, move C A, so A plus PC. So copy the bit of the ROM address from by adding the A and PC to the accumulators. So access this data is made the possible by using the index addressing and A register in conjunction with the either of PC or DPTR. So the content of the A are added to the pointer get the address of the data, यानी कि जो हम एड्रेस दे रहे हैं एक्सटर्नल वो और एक्यूमुलेटर एडिशंस होगा. So the data of this address is placed in the accumulator and therefore the old data of the A is lost. So example यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, the example is move DPTR to has 400, यानी कि लोड होगा 400. then move the load accumulator with the 03. now the move C, अब move C A @ A plus DPTR, यानी कि DPTR की वैल्यूज़ क्या है 4000 और A की वैल्यू है 03, तो ऐड होगा. So the 4000 plus 3 is equal to 4003 वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर होगी. So 8051 has the access the 64 kilobits of the code space, and since for the PC is the 16-bit, move C is normally used with the internal or external ROM. So the all data is moved from the code memory to the
सो जैसे ही यहाँ पे हमने देखा, सो ऑल द डेटाज मूव फ्रॉम द कोड मेमोरी टू द ए रजिस्टर्स एंड द पीसी इज increment by the 1 before adding it to the accumulator. Now हम एक एग्जांपल इसमें देखेंगे. The example is, so write the program to the copy of the value is 4h into the RAM memory location is 50 to 54. अब क्या करना है हमको ए मेमोरी लोकेशंस में 55 वैल्यूज स्टोर करनी है. सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कौन कौन सी तरीके से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड विथ अ लूप. सो फर्स्ट वन हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से करेंगे. तो डायरेक्ट एड्रेसिंग हम क्या करेंगे, 45 वैल्यूज वाला एक्यूमुलेटर में लेंगे, ठीक है. देन मूव द 50 टू 54. तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 50 में जाएगी. देन आफ्टर 51, 52, 53 एंड 54. दीज आर द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कि हमने जो वैल्यू है वो पहले एक्यूमुलेटर में ले लिया एंड देन आफ्टर वी कैन individually store the values in 50 to 54 memory locations. Now अब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से हमको करना है. तो पहले ही वही एक्यूमुलेटर में मैंने वैल्यूज़ ले ली. देन मूव R0 हैज़ 16, यानी कि R0 मैंने क्या किया, लोड किया. अब R0 में मैंने लोड किया यानी कि एक मेमोरी लोकेशन उसमें R0 में जो होगी वो आ जाएगी. देन आफ्टर्स मूव दी @R0A, यानी कि मेमोरी लोकेशन में एक्यूमुलेटर की वैल्यू जाएगी. देन इंक्रीज द R0, देन अगेन द एक्यूमुलेटर टू R0, देन अगेन इंक्रीज द R0 अप टू द 50, 51, 52, 53 एंड 54. सो दीज आर द रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब लूप यूज़ करना है. तो अगेन मूव द वैल्यू ऑफ ए हैज़ द 45, मैंने लोड किया एक्यूमुलेटर में. देन सिलेक्ट द रजिस्टर्स. देन मूव द R4 हैज़ 05, यानी कि R4 मैंने लोड किया. अब मूव दी वैल्यूज़ ऑफ R0. मुझे क्या करना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू R0, देन इंक्रीमेंट दी R0. कब तक करना है, जब तक R4 तक नहीं जाएंगे तब. देन अगेन, सो अगेन वो लोग इतना तक का कंटिन्यूसली लूप फॉलो करेगा जब तक R4 नहीं आ जाएगा तब तक. So these are the 3 different way to explain our program, same program to executed. Now the another examples, the word book को हमको is burn into the flash ROM locations and starting from the location, starting locations दिया हुआ है 0200 of 8051. So write the program to read this data into the internal RAM location starting from 50. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ORG 000 मैंने कर दिया. देन ये जो है ए 0200 वो रोम यानी कि एक्सटर्नल है, तो DPTR में लोड करेंगे एड्रेस. देन आफ्टर मूव दी 50 इंटरनल मैंने लोड किया R0 में, ये जो स्टार्टिंग फ्रॉम है. देन मूव दी R4 04. नाउ बैक. सो क्लियर द एक्यूमुलेटर्स. देन मूव C, जैसे हमने आगे देखा था कि सो C लेटर वो ऐड करने के लिए. सो द एक्यूमुलेटर्स वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पे तो 0 है, 0 प्लस जो DPTR में जो वैल्यूज़ है वो. देन मूव दी ये वैल्यू हमको क्या करना है, R0 में लेना है. देन इंक्रीमेंट द DPTR एंड वो कब तक, R4 तक हमको लूप कंटिन्यू करना है. अगर हो जाएगा सो द SM जंप हियर पे जम जाएगा. देन ORG 0200 वो कब तक एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि डेटा रिप्रेजेंट करेगा बुक अप टू दी एंड. सो दीज आर दी रिप्रेजेंट द बुक एग्जीक्यूशंस. नाउ द डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन. सो हमको मूव हमने आगे देखा, डेटा ट्रांसफ़र यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना. तो आगे जो हमने जो वैल्यूज़ एग्जीक्यूशंस देखा एड्रेसिंग मोड में वही मूव है. सो उसमें क्या होता है कि दिस वन यू कैन सी दैट मूव. देन डेस्टिनेशन बिट, यानी कि जो डेस्टिनेशन है वो आएगा. देन सोर्स बिट. सो मूव बिट वेरिएबल्स यानी कि कमेंट्स. सो हियर हमने जो अभी तक देखा वो तो इंस्ट्रक्शंस मूव ARN. सो अल्गोरिदम में E = RN वैल्यू सेम आ जाएगी. देन एग्जांपल इज मूव AR1, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो मूव द बीट फ्रॉम द रजिस्टर
Rn यानी कि R1 टू एक्यूमुलेटर, यहाँ पे 40 जो एड्रेस है, जो 40 एड्रेस होगा, क्योंकि यहाँ पे हैज़ नहीं लिखा है, हैज़ होगा तो वैल्यूज़, अगर हैज़ नहीं है तो 40 एड्रेस में जो वैल्यूज़ होगी वो एक्यूमुलेटर में आएगी। देन मूव a@RI, सो a मोड ऑफ RI यानी कि @R0, सो मूव द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशंस R0 टू द एक्यूमुलेटर्स। देन हैज़ डेटा यानी कि डायरेक्ट हम डेटा 31, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मूव A31 यानी कि 31 जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में आएगी। देन मूव RNA यानी कि एक्यूमुलेटर में जो वैल्यूज़ है वो Rn में आ जाएगी। सो मूव द R5A यानी कि मूव द डेटा फ्रॉम द एक्यूमुलेटर टू द रजिस्टर R5। देन मूव द Rn एंड डायरेक्ट, सो एंड डायरेक्ट इक्वल टू 13, तो मूव द डेटा फ्रॉम द डायरेक्ट एड्रेस यानी कि हम यहाँ पे जो एड्रेस है वो डायरेक्ट एड्रेस लिख देंगे, जैसे ही हमने यहाँ पे आगे लिखा वो, यस दिस वन। देन द मूव डायरेक्ट ए इन सिमिलर वे, देन मूव द हैश डेटा यानी कि जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट हम इमीडिएट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन मूव द डायरेक्ट टू Rn यानी कि हम रजिस्टर कोई जो एड्रेस है, लोकेशंस है, उसमें से हम रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। इन सिमिलर वे डायरेक्ट टू डायरेक्ट यानी कि एक एड्रेस में से लेके जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट दूसरे एड्रेस में हम रख सकते हैं, यानी कि मूव द R20 टू 30 यानी कि 30 में जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट वैल्यू हम 20 में रख सकते हैं। सो मूव द डेटा फ्रॉम द सोर्स डायरेक्ट एड्रेस टू द डेसिमल डायरेक्ट एड्रेस। अगेन द समवन इज़ द डायरेक्ट इंटू @RI यानी कि जो 20 में जो एड्रेस वैल्यू, जो एड्रेस में जो वैल्यूज़ होगी वो डायरेक्ट हम रजिस्टर एड्रेस में रख सकते हैं। देन डायरेक्ट हैज़ डेटा यानी कि जो डेटा है, जो वैल्यूज़ है, हम डायरेक्ट एड्रेस में रख सकते हैं। देन मूव RIA, अगेन दिस वन। नाउ द मूव X, जैसे ही हम इंटरनल, जैसे मूव सिंबल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इंटरनल मेमोरी के लिए है और मूव X वो एक्सटर्नल मेमोरी के लिए है। तो जो हमने आगे देखा वो सेम, सो a@RI, so the instructions will copy the data from 8-bit address pointer register of RI of the selected register bank to the accumulator। यानी कि RI यानी कि हम जो सिलेक्ट रजिस्टर बैंक करेंगे उसमें जो एड्रेस में जो डेटा का वो एक्यूमुलेटर में आएगा। देन मूव X a@DPTR यानी कि जो DPTR जो एक्सटर्नल मेमोरी लोकेशंस में जो वैल्यूज़ होगी वो एक्यूमुलेटर में आएगी। सो दीज आर द डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। नाउ सम अनदर वन इज़ द पुश @direct। सो दीज इंस्ट्रक्शंस कॉपीज द डेटा फ्रॉम द सोर्स एड्रेस ऑन द स्टैक यानी कि जो स्टैक पे जो वैल्यूज़ होगी वो एड्रेस में आएगी। यानी कि ऑपरेशंस का कैसा हो गया कि स्टैक पॉइंटर +1 यानी कि स्टैक पॉइंटर +1 इज रिप्रेजेंटेड दैट इन द डायरेक्ट। सो द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जैसे लेट SP इक्वल टू 0AH एंड द डेटा पॉइंटर इज 1 2 3 4, सो पुश द डेटा पॉइंटर लो वैल्यूज़ एंड पुश द डेटा पॉइंटर एज, यानी कि दिस वन इज द 22 and 50 0ABC and the values of the 12 data pointer higher and lower values. So the lower values is transferred to the push the 34 में जाएगी and the 12 values is यहाँ पे जाएगी, यानी कि you can see here 34 and 12 तो मेमोरी लोकेशन। सो दीज आर दी स्टैक, यानी कि यहाँ पे A और B में वैल्यूज़ है। अब A डायरेक्ट पुशअप करेगा B और C में। सो दीज आर दी पुस्ट इंस्ट्रक्शंस। नाउ द पॉप, द इंस्ट्रक्शंस कॉपीड द डेटा फ्रॉम द स्टैक टू द डेस्टिनेशन लोकेशंस। सो डायरेक्ट this one -1, so direct addressing mode. So let the stack pointer is 35 and the data pointer of the RAM location is 34, so the 52. Then the instructions pop DPL
will level of the stack pointer to the value of 34. So DPL equal to 52. सो यहाँ पे क्या होगा कि पॉप करने की वजह से जो 34 में जो वैल्यूज़ है वो लो सोर्ड में जाएगी, तो 34 जो मेमोरी लोकेशन में 52 है तो यहाँ पे जाएगी, तो वैल्यू इज़ 52. नाउ द एक्सचेंज दी डेटा. सो एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज एक्यूमुलेटर विद दी bit variable. So extend accumulator with the bit variable. So the A is extend from the bit variable. So उसमें कैसे होगा कि एक्सचेंज, अगर वैल्यूज़ मुझे एक्सचेंज करनी है, यानी कि एक्यूमुलेटर में जो वैल्यूज़ है वो मुझे पर्टिकुलर एड्रेस में जो वैल्यूज़ है मुझे एक्सचेंज करनी है. यानी कि अगर मेरे जो मैंने सपोज के एक एक्सचेंज कहाँ पे यूज़ होगा कि अगर मेरा जो प्रोग्राम है मुझे कंपेयर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पर्टिकुलर एक टाइम में जो वैल्यूज़ ली वो एक्यूमुलेटर में आ गई. अब वो वैल्यूज़ और मेरे साथ जो RN वैल्यूज़ है वो मुझे वेरीफाई करनी है, तो मैं एक्यूमुलेटर का डेटा पर्टिकुलर एड्रेस के साथ एक्सचेंज कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है, क्या वैल्यू. सो हियर यू कैन सी दैट. सो एक्सचेंज दी ए इन द डायरेक्ट, यानी कि जो एड्रेस है उसमें से जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर के साथ एक्सचेंज हो जाएगा. जैसे कि दिस वन इंस्ट्रक्शंस विल बी लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 1011 टू द एक्यूमुलेटर. सो द सेम टाइम द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर आर ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज 10. यानी कि 10 में जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र होगी. देन एक्सचेंज द ए एट द रेट RI, यानी कि @R0. सो R0 में जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर एड्रेस में, उसमें जो वैल्यूज़ है वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र होगी. देन एक्सचेंज टू A @RI, तो एक्सचेंज D @. सो दिस इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज द लोअर निबल ऑफ एक्यूमुलेटर bit 3 with the lower nibble of the memory locations. So these are the exchange data. If any query regarding this topic, you can call me. If any questions regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.